आपके वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इसलिए इस सेंस में हो जाते हैं क्योंकि सर आपके वीडियोस हेल्प करते हैं टू बी प्रिपेयर्ड. योर चैनल इज अ वेरी गुड एफर्ट और endeavor, I would say, and everyone should watch your content to be prepared at least. So hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are back again with a new video, and today we have a new member, Roshan Kumar. Roshan ने अभी recently बायजूस में academic specialist for social science teacher उन्होंने crack किया है recently. So congratulations first of all for that, Roshan, to you. And आज Roshan हमारे साथ जुड़े हैं because Roshan wants to share about the experience कि how he applied, link कहाँ से मिली उनको, क्या questions हुए, कैसे कैसे rounds हुए, तो he will share everything with us, ठीक है? So my request is to all of you that be with us in the complete video and watch us till the end, ताकि you can know about the Roshan's journey and कुछ चीजें आपको भी हेल्प करेगी उससे, जो आपको हेल्प करेगी अप्लाई करने में, अल्टीमेटली सिलेक्शन में हेल्प करेगी आपको, ठीक है? So first of all, Roshan, welcome to my YouTube channel and many congratulations to you for cracking the Byju's interview of social science in very short span of time. तो Thank रोशन you sir, आज का जो thank you सेशन very हमारा, much. यस, तो रोशन आज जो Yes, सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ये पूरी आपकी जर्नी के बारे में होगा. आपने कहाँ से अप्लाई किया से yes sir. लेके सिलेक्शन मिल कब तक आया आपको, ठीक है? तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अपने Okay इंट्रोडक्शन sir. पार्ट से कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने करिकुलम पढ़ाई में क्या किया हुआ है, देन वील मूव फॉरवर्ड टू ऑल योर जर्नी, ठीक है? यू कैन गो अहेड Okay विद sir. इंट्रोडक्शन. Okay. Okay. First of all, thank you sir for having me. And hello everybody. My name is Roshan Kumar. I recently got selected for the post of academic specialist for the subject of social science at Byju's. I am basically from Ranchi, Jharkhand, which is a state in eastern India, and I did my graduation in political science and government from St. Xavier's College from here Ranchi itself in 2018, and completed my masters in the same subject in September 2021 itself. Thereafter, I was preparing for UPSC, but after preparing for 2-3 months, I lost my interest in it and decided to become an educator. And by God's grace, I got the opportunity at the same time and landed at Byju's. ग्रेट रोशन, ग्रेट. ओके, सो रोशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आप ये बताओ कि बहुत लोगों के डाउट्स आते हैं कि हाउ टू अप्लाई, लिंक कहाँ से मिलती है. सो आपके केस में कैसे मिली आपको लिंक, आपने कैसे अप्लाई किया बायजूस में? Okay, so one fine day, I was just I applied it through an ad. So I was scrolling on the Facebook app. So I saw there an advertisement mentioning that Byju's is looking for a social science educator. So I just clicked there, and there I saw they were asking only some basic things: my name, email ID, phone number, and my qualification. Had it been asking some more, I think I would not have filled that because I didn't have even resume at that time. But they were asking 3 to 4 basic things, so I filled that and moved forward. Yes, sir. So that was my process of application. And if you don't get it there, you can also get it at the Byju's official careers portal. They are for whatever vacancies they are for any type of opening. All everything is mentioned at that page, sir. ठीक है, परफेक्ट. सो गाइस, आई थिंक आपको आइडिया मिल गया अप्लाई कहाँ से करना है इस लिंक के लिए और कहाँ कहाँ से आपको ये लिंक मिल सकती है, ठीक है? तो रोशन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अप्लाई करने के बाद आफ्टर हाउ मेनी डेज यू गॉट अ कॉल फ्रॉम बायजूस? Okay, so sir, after applying, I basically forgot that I had applied for a post, and I got engaged in my day-to-day activity. I didn't even remember. So after 10 to 15 days, one morning, I was just checking my mail. So I saw a mail by the title Byju's hiring. So I just clicked on that. And so it was mentioned that congratulations, your profile has been selected for the post of academic specialist, and you are required to submit a demo video of 5 to 7 minutes. And they had given some topics, and they had not restricted us to that. They had not restricted me to that topic. They had also mentioned that similar to this topic also you can make video, but make sure that not to that it should not be too generalistic. So I chose one topic of my choice, and I made and submitted a demo video. ठीक है, तो रोशन टॉपिक क्या टॉपिक था आपका वैसे डेमो वीडियो के लिए?
सर टॉपिक मेरा टॉपिक मैंने चुना था सर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ओके, ठीक है। तो डेमो जो आपने बनाया था बायजूस के लिए, उसकी लेंथ क्या होगी डेमो वीडियो यस की? आपने कितना लेंथ के वीडियो बनाया था उस टाइम पे? सर एक्चुअली मुझे कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। आई एम कम्प्लीटली फ्रेशर। तो ना मुझे कभी कोई पढ़ाने का एक्सपीरियंस था, ना मैंने कभी ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं नहीं पढ़ा है, ना मैंने कभी कैमरा फेस किया था लाइफ में पहली बार पहले। तो इट वेंट होल डे सर, मतलब होल डे नॉट 4 से 5 घंटे मुझे लग गए बार बार शूट करने में। कभी 8 मिनट के हो जाते थे, कभी 9 मिनट के हो जाते थे। तो एट लास्ट सर 6 मिनट 30 सेकंड का वीडियो मैंने शूट किया था और उसे मैंने भेजा सर। ठीक है। सो आपका वीडियो जब सेलेक्ट हो गया, या आपको जब वीडियो आपने सेंड कर दिया बायजूस में, सो आफ्टर हाउ मेनी डेज आपको कॉल आया बायजूस से कि आपका सिलेक्शन हो गया है नेक्स्ट राउंड के लिए, टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए? ओके सो ये सर बहुत ही मतलब बहुत ही डिफरेंट पार्ट है एक्चुअली। मैंने जब वीडियो भेजा तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि दे विल एटलीस्ट टेक 10 to 15 days इन रिवर्टिंग इन प्रोसेसिंग द इंटरव्यू। बट सर उन्होंने डे आफ्टर टुमारो ही रिप्लाई, इनका कॉल आ माय गया गॉड, कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके। योर डेमो हैज बीन सेलेक्टेड एंड अरे वाह। यू आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू एन इंटरव्यू राउंड। तो एक चीज मैं सर यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि till the time I filled the form on the ad, till the time I gave the interview, I had no clue about anything about this post, that you people have created wonderful content on YouTube. There are lots of candidates that have shared their experience, how to perform in interview, what the interviewer expects from us. I had no clue. I was on my own. I didn't know. I haven't performed. I haven't appeared in any interview prior to this. सो जस्ट मैंने कहीं सोचा कि शायद वो मेरा इंट्रो पूछ दे, क्योंकि मुझे इंट्रो भी देना नहीं आता था सर उस समय। तो अच्छा। 3:30 में मेरा इंटरव्यू था, और 3:25 में मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि इंटरव्यू कैसे, मतलब इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं अपना। तो परफेक्ट। उस तरह का स्टेट था सर। तो सर नेक्स्ट मतलब इंटरव्यू जो था सर, वो डेमो वीडियो सबमिशन के डे आफ्टर टुमारो ही मेरा शेड्यूल हो गया था। ठीक है, परफेक्ट। सो आपका एक ही इंटरव्यू हुआ बायजूस में, या मल्टीपल इंटरव्यूज हुए आपके? नो सर, एक ही इंटरव्यू हुआ। एक ही इंटरव्यू। एक्चुअली एक इंटरव्यू हुआ सर जो जिसमें एकेडमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और एक जो सिलेक्शन जिस दिन था, जिस दिन मेल आया उस दिन कोई मैम, एचआर मैम थी, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए कि वेदर यू आर इन परसुइंग एनी डिग्री कोर्स, और आर यू एम्प्लॉयड समवेयर, आर यू अच्छा, फ्री टू बेसिक क्वेश्चंस। रिलोकेट टू बैंगलोर। यस सर, यस। ठीक है, ओके। सो रोशन, पहले तो आप हमें ये बताइए कि एकेडमिक वाइज उन्होंने क्या क्या पूछा आपसे, मतलब आपके एकेडमिक में क्या क्या सब्जेक्ट इंक्लूडेड थे? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे उन्होंने आपसे? ओके सो सर जिस दिन मेरा डेमो वीडियो सिलेक्शन का फोन आया था, उस दिन मैम ने बताया कि यू विल आई एम जस्ट शेयरिंग यू लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, 7 चैप्टर्स उन्होंने दिया था, और उन्होंने बोला था कि in addition to this you have to prepare a 10 minutes live demo, you have to give in front of the interviewer. तो मैंने तो वो सर 7 जो चैप्टर्स थे उसमें से इकोनॉमिक्स के कोई चैप्टर्स नहीं थे, उसमें हिस्ट्री था, सिविक्स था, ज्योग्राफी था। तो सर सारे तीनों उन्होंने मेरे डेमो से भी मुझसे क्वेश्चन पूछे, और तीनों जो सब्जेक्ट्स थे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, तीनों से उन्होंने मोर और लेस थोड़ा सा ज्योग्राफी से ज्यादा पूछा, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरा वीक पार्ट था। पर फिर भी सर उन्होंने मोर और लेस सारे से सवाल पूछा सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको याद है क्या पूछे थे आपसे क्वेश्चंस वगैरह, कुछ भी आपको याद हो तो? यस सर, क्वेश्चंस तो याद है, क्योंकि मैं बार बार सोचता था कि मैं मतलब किसका जवाब मैंने सही दिया, किसका गलत दिया। तो सर फ्रॉम हिस्ट्री दे आस्क्ड सर कि बेसिक क्वेश्चंस, आई डोंट नो व्हाई, बट दे आस्क्ड वेरी बेसिक क्वेश्चंस। मतलब मुझे पहले घबराहट हो रही थी, पर ड्यूरिंग इंटरव्यू दे आस्क्ड बेसिक क्वेश्चंस। फ्रॉम हिस्ट्री दे आस्क्ड कि व्हेन डिड औरंगजेब डाइड, सो आई हैड टू मेंशन ओनली ईयर, क्योंकि उसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, इट वाज अ पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन। But sir, one from history, she also she was a lady who did my interview. So उन्होंने एक और क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा कि how did Tipu Sultan became more powerful, so powerful that he was able to challenge Britishers. So from history ये पूछा सर। From civics से सर उन्होंने पूछा कि
what is judicial review? Again, a very, very basic question. What does the term acquittal means in terms of judicial review? When was PIL introduced in India? Yes, sir. ये सारे सिविक्स से थे. उन्होंने थोड़े ज्यादा क्वेश्चन सर मेनली ज्योग्राफी से पूछे. ज्योग्राफी से उन्होंने पूछा कि नेम सम मेन रिवर्स ऑफ प्लेन, दैट इज द जो हिमालय के बाद का जो सेक्शन है उसका जो मेन रिवर्स है उसके बारे में कौन कौन से है वो बताइए. व्हाट इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट? सो व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोइंग ऑफ फाइबर क्रॉप्स? ओके. एंड सर इसी तरह से और ज्यादा तो मुझे याद नहीं आ रहे, पर ये 2-3 क्वेश्चन उन्होंने ज्योग्राफी से और ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने कि कोरल्स कहाँ पे पाए जाएंगे इंडिया में, किस एरिया में. हाँ, फिर उन्होंने पूछा कि सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू का डिवीजन बताइए, कहाँ पे सिचुएटेड है. तो सर या इस तरह से सवाल उन्होंने पूछा. ठीक है. सो हाउ मेनी क्वेश्चन यू वर एबल टू आंसर? कितने आपने आंसर किए होंगे उसमें से? सर around 18 questions she asked and I was able to answer 14 to 15 plus. I am not sure 15 or 16, but approx 15 I was able to answer. And in the question that I didn't know, I said that sorry, I will have to look into it. Okay, perfect. रोशन, एक और क्वेश्चन है आपसे, जो आपने भी मेंशन किया लाइव डेमो के बारे में, जो इंटरव्यू में हुआ था आपका. तो लाइव डेमो में टॉपिक क्या चूज किया था आपने? सर लाइव डेमो में चूंकि मतलब प्रॉब्लम ये हो गई थी सर कि ये सारे सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं, पर 7 चैप्टर पर हमें वो ब्रश अप करना था और टाइम वो ऐसा प्लान करते हैं कि वी डोंट हैव इनफ टाइम. फोन उनका आया था लगभग 12:30 PM में एंड शी शेड्यूल्ड माय इंटरव्यू नेक्स्ट डे 3:30 PM. So I had to prepare all the chapters, not prepare actually, at least have a look on them so that brush up हो जाए चीजें. और secondly I also had to prepare a live demo which will in any case require at least 2 hours for me, क्योंकि conceptually clear होना होगा, keywords उसमें कौन से डालने हैं कौन से नहीं डालने हैं ये सब. तो मैंने सर उस समय जो मुझे सबसे कम समय में लगा कि मैं ये कर सकता हूँ वो चुना. वो टॉपिक था सर कि features of Indian Constitution. What is Constitution and what are its features? Yes. Okay. तो ड्यूरेशन कितना था आपका? कितना मिनट का गया आपका ये लाइव डेमो? एक्चुअली सर उन्होंने बोला था एक दिन पहले कि 10 मिनट का डेमो आपको प्रिपेयर करना है. सो आई प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, बट ड्यूरिंग लाइव डेमो आई वाज वेल ऑन माय ट्रैक. बट प्रायर टू स्टार्टिंग ऑफ माय इंटरव्यू शी टोल्ड मी कि आपको जो डेमो है वो 5 मिनट में ही खत्म करना है. तो उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि इसको प्रोसेस कैसे करूं, क्योंकि मैंने प्रिपेयर तो 10 मिनट का किया है और बीच में छोड़ नहीं सकता हूं. तो फिर मैं नर्वस हो गया थोड़ा. फिर मैंने थोड़ा काम किया अपने आप को कि ओके अब यही है तो इसी में कुछ करना होगा. तो आई स्टार्टेड. सो आफ्टर 4 to 5 मिनट आई वाज जस्ट अबाउट टू एंड द डेमो. सो शी सेड ओके अब यहाँ पे आप रुक जाओ, विल मूव टू क्वेश्चन आंसर सेशन. ठीक है. ओके. सो रोशन, आपका इंटरव्यू जब खत्म हो गया तो लास्ट में कुछ बोला उन्होंने आपको? कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा या कुछ बताया आपको उन्होंने इंटरव्यू खत्म होने के बाद? यस सर, इंटरव्यू खत्म होने के बाद उन्होंने ये तो नहीं बताया कि रिजल्ट कब आएगा, पर ये बताया कि आपको बहुत जल्द आपके रिजल्ट्स मिल जाएंगे. इवन इफ यू आर सिलेक्टेड और इवन इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड यू विल गेट बोथ काइंड्स ऑफ मेल. हाँ यस सर. तो वैसे एक्चुअली आफ्टर हाउ मेनी डेज आपको मेल आया बायजूस के एंड से कि सिलेक्शन हो गया आपका? सो सर ये तो हाँ, तो इसमें सर एक्चुअली मैंने पहले तो नहीं देखा कि एकेडमिक स्पेशलिस्ट के बारे में इतना सारा वंडरफुल कंटेंट आप लोग प्रिपेयर करके यूट्यूब पे डाल रहे हो. लेकिन एक इंटरव्यू होने के बाद मैं यूट्यूब पे जब मैंने सर्च किया तो इतने एंशियस कमेंट्स आ रहे थे कि किन्हीं के एक महीने के बाद भी नहीं आ रहे थे, किसी के 1 हफ्ते में आ जा रहे थे. तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे, और कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी नहीं था. सम पीपल वर टेलिंग कि टैग देम ऑन लिंक्डइन और बट सर आई फेल्ट दैट लेट देम टेक देयर टाइम. मैंने कहीं कोई टैग नहीं किया उन्हें. सो सर माय इंटरव्यू वाज ऑन 7th March and I got my selection mail on 26th of March. So it was around 19 days. Yes sir, it was around 19 days and I was very anxious in those days because the YouTube, LinkedIn is full of comments like very anxious. That will make you anxious. So I will advise
candidates to please not take those comments seriously. Byju's do reply even if you are selected or not selected. It's just that they are hiring on a mass scale. So थोड़ा टाइम it test patience. Yes sir, patience test करते हैं वो लोग कि how much मतलब कितना वेट कर सकते हैं. ठीक है. और आपकी ज्वाइनिंग कब से वैसे बायजूस में होने वाली है? सर मेरी ज्वाइनिंग सर 8th of April से है. 8th of April से आप स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, परफेक्ट. Yes, ठीक है. sir. तो Yes, sir. रोशन, कैसी रही जर्नी आपकी? कैसा लगा आपको ओवरऑल बायजूस में इंटरव्यू देके एंड ऑल्सो एवरीथिंग? कैसा रहा आपके लिए एक्सपीरियंस? सर एक्सपीरियंस तो बहुत एनरिचिंग था, क्योंकि इतने सारे अप्स डाउन्स आ रहे थे. कुछ पता नहीं चल रहा था. किसी जिन्होंने मतलब आई नो आफ्टर गिविंग इंटरव्यू आई मेट सम फ्रेंड्स on social media sites who also had applied for this post. I know a person who gave same profile same day interviewed, मतलब मेरे ही दिन, जिस दिन मेरा था उसी दिन उसका भी इंटरव्यू था. उसने सारे के सारे सवाल सही जवाब दिए और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ. तो he got rejection mail. So I got anxious कि मतलब इसने तो सारे सही दिए तो इसका ये सिलेक्शन नहीं हुआ. तो मेरा तो आई वाज प्रीटी श्योर कि नहीं, मेरा तो होना नहीं है. सो आई वाज जस्ट स्टार्टेड टू स्टडी अगेन ऑन माय, मतलब मैं फिर से पढ़ाई करने लगा अपना और सोचा कि अगर फिर से कभी वैकेंसी आएगी तो आई विल अप्लाई अगेन. सो इस तरह के थे. एंड आई ऑल्सो मेट अ गर्ल हु गैव हर इंटरव्यू ऑन 25th of March, 25th of March, एंड गॉट हर रिजल्ट ऑन 28th of March, ओनली 3 days. तो इस तरह के. सो आई आस्क्ड हर कि क्या हुआ क्या था तुम्हारे इंटरव्यू में, समथिंग ग्रेट वुड हैव हैपेंड, क्योंकि बायजूस इज नॉट नोन फॉर इट. आई मीन दे आर हायरिंग ऑन अ मास स्केल. तो शी सेड कि दे आस्क्ड मी 25 क्वेश्चंस एंड आई आंसर्ड ऑल ऑफ देम. सो देन आई गॉट ओके, सो यू आर ब्रिलियंट. सो बायजूस ने तुम्हें तुरंत दे दिया. तो जैसे एनरिचिंग एक्सपीरियंस था, अच्छा था. और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी बायजूस की सर कि वो टैलेंट को चूज कर रहे हैं सर, वो एक्सपीरियंस वगैरह. क्योंकि मतलब मैं कंप्लीट फ्रेशर हूँ सर, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है वैसा. हाँ, टीचिंग एक पैशन है, कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है, पर मेरे पास कोई ऐसा सच था नहीं शो करने के लिए. तो ओवरऑल सर बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा फील होता है टू बी अ पार्ट ऑफ सच इनक्रेडिबल एंड ग्रोइंग कंपनी सर. परफेक्ट. ठीक है. तो रोशन, आपके इंटरव्यू में बायजूस के एकेडमिक क्वेश्चंस के अलावा कुछ और पूछा उन्होंने आपसे? नॉर्मल क्वेश्चंस कुछ भी, यहाँ वहां से कुछ भी, इधर उधर से? यस सर, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे इस जॉब रोल के बारे में कुछ पता नहीं था कि क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं. तो आई वाजंट प्रिपेयर्ड. इस क्वेश्चन के लिए मैं एकदम प्रिपेयर्ड नहीं था. व्हेन शी आस्क्ड मी कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन बायजूस. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था वहां पे कि ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था और ये बेसिक था सर, इसको आंसर तो करना ही पड़ेगा. तो सर जस्ट मुझे इतना पता था कि बायजूस एक ऐसी कंपनी है जो मतलब जिसने एजुकेशन को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है एक तरह से, कि अर्लियर की जो छोटे शहर के स्टूडेंट्स थे उन्हें अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते थे. नाउ दैट इज नॉट द केस. तो आई सेड हर कि दैट थिंग अबाउट बायजूस अट्रैक्ट मी द मोस्ट एंड सो डू आई वांट टू जॉइन बायजूस. परफेक्ट. ठीक है, एकदम ग्रेट. इसके अलावा सर उन्होंने, यस सर, इसके अलावा उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा सर बायजूस से. नहीं, आपका आंसर काफी अट्रैक्टिव, अच्छा आंसर था. ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जितने शॉर्ट हो ना उतना अच्छा रहता है. इसको ज्यादा इलैबोरेट ना करें, हम पॉइंट टू पॉइंट बोले, दैट इज फार बेटर एज पर मी आल्सो, है ना. तो मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं उनके लिए भी सेम टिप है. जैसे रोशन ने बताया, बहुत इलैबोरेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. इफ वो अगर आपसे पूछते हैं व्हाई डू यू वांट टू जॉइन बायजूस, एकदम कट शॉर्ट आंसर बताओ, एकदम टू द पॉइंट आंसर बताओ. कोई इलैबोरेट मत करो, कुछ मत करो. पॉइंट पे बोलोगे, डेफिनेटली यू विल हैव द चांसेस कि आपको वो पॉजिटिव लेंगे उस आंसर को. एक चांस मिलेगा आपको उस चीज. ठीक है, ओके. तो रोशन, नेक्स्ट थिंग ये है, जो आपने हमारा कंटेंट देखा यूट्यूब पे, जो वीडियो आपने हमारे देखे बायजूस के, उसने आपको एक्चुअली कितना हेल्प किया? बिकॉज मल्टीपल कमेंट आते हैं हमारे इसके बाद कि क्या हेल्पफुल है वो कंटेंट, कितना हेल्पफुल है. तो आप क्या बोलते हो? व्हाट इज योर सजेशंस? सर एक्चुअली आपके वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल इसलिए इस सेंस में हो जाते हैं क्योंकि सर आपके वीडियोस हेल्प करते हैं टू बी प्रिपेयर्ड. क्योंकि सर जैसा मैंने बताया कि उन्होंने वो सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि डू यू नो एवरीथिंग. वो उनका सिर्फ, क्योंकि मैंने बताया कि एक फ्रेंड है, जिसने सारे के सारे आंसर सही दिए थे फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ.
because they are looking they are looking for many other things. For example, they are looking ki the question that they are asking, are you explaining them? And you can only explain if you have conceptual clarity. So these thing can only be known कि जब लोग आपकी वीडियोस देखे, आप बताते हो कि हाँ वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हाउ टू गिव एन इंटरव्यू, हाउ टू प्रोसीड विथ आंसर्स, कि अगर वो क्वेश्चन पूछे तो आपको सिर्फ टू द पॉइंट एक वर्ड में आंसर देके चुप नहीं हो जाना है. इफ यू कैन एक्सप्लेन 2-3 lines 4 lines, you should, that will make a very positive impact on them. Yes, the person has a conceptual clarity and he is willing to explain it. So sir, ये सब सारी चीजें मैंने आपसे सीखा. तो even though the person is very well academically, if they don't know that you the things that you are sharing on your channel, their chances are gets reduced, sir. So yes, in that sense, sir, your channel is a very good effort or endeavor, I would say, and everyone should watch your content to be prepared. At least the preparation is very, क्योंकि सर सबने पढ़ा है सर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो मेरे से कम जानता है, वो बस यही सब एक्स्ट्रा चीजें से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. सो गाइस, बिल्कुल सही बात बोली रोशन ने. मेरा कंटेंट जो है वो खाली ऐसा नहीं कि एकेडमिक्स में हेल्प करता है आपको. एकेडमिक्स सबका स्ट्रांग होता है कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत जो आपने पढ़ा है 10th 12th में, ग्रेजुएशन में, बट मेरा कंटेंट आपको हेल्प करेगा बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए, है ना. वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बायजूस में. जैसे रोशन ने बताया, वो मेजर रोल प्ले करते हैं. इनका सिलेक्शन नहीं भी होता है, ऐसा नहीं है कि वो एकेडमिक वाइज कमजोर है, ऐसा है कि उन्होंने वीडियोस देखा नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं थे वो, बट रोशन ने वीडियोस देखे, वो प्रिपेयर्ड हो गए. तो आपसे भी मैं वही कहूंगा, इफ यू हैव टाइम ना, 5-10 मिनट निकालो, वीडियोस देखो हमारे, थोड़ा सा उसका नॉलेज लो, उस चीजों को नोट करो, सोचो समझो मुझे कैसे बोलना है, आपको काफी हेल्प करेगा वो इलैबोरेटिव फॉर्मेट में. ठीक है, तो मेरा भी सजेशन रहेगा आपको, अगर टाइम है तो प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो एंड टेक द नॉलेज फ्रॉम एवरी कंटेंट. वो कंटेंट आपके लिए बनाया गया ताकि आप देखो, सीखो और सिलेक्शन लो. दैट इज द होल एजेंडा ऑफ दिस. एंड गाइस, वन मोर थिंग, इफ यू ऑल वांट टू जॉइन द मॉक सेशंस, किसी को ऐसा है हेजिटेशन हो रही है बोलने में, डर लग रहा है, तो फॉर दैट वी कंडक्ट मॉक सेशंस. तो अगर आपको मॉक ज्वाइन करना है हमारा, जैसे बोर्ड से पहले प्री बोर्ड होती है, सेम वे इंटरव्यू से पहले यू कैन हैव मॉक इंटरव्यू टू गेट प्रिपेयर्ड. तो उसके लिए 3 बेसिक स्टेप्स है. पहला स्टेप है गूगल फॉर्म का, मैं उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. उस लिंक पे क्लिक करो, फिल द गूगल फॉर्म, एंड डेफिनेटली आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू रिगार्डिंग मॉक सेशंस. सेकंड थिंग इज हमारा टेलीग्राम चैनल पे जाओ एंड मेंशन करो कि आई वांट टू अटेंड मॉक इंटरव्यू सेशंस. हमारी टीम कॉन्टैक्ट करेगी आपको, एंड देन यू कैन अटेंड द मॉक इंटरव्यू सेशंस. एंड थर्ड वन इज सिंपलेस्ट, व्हाट्सएप नंबर है, हमें व्हाट्सएप कर दो, उस नंबर पे हमारी टीम कॉन्टैक्ट कर लेगी आपको रिगार्डिंग दिस. ठीक है, एंड एनी हेल्प, एनी गाइडेंस चाहिए आपको गाइस, यू कैन कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन. मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा आपकी हेल्प कर सकूं उन कंटेंट को लेके. ठीक है. सो रोशन, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क टू यू, कि आपने पूरा जर्नी फेस किया बायजूस का, देखा आपने क्या अप डाउन होता है बायजूस में, कैसी चीजें होती है. तो हमारे व्यूअर्स को एक टिप क्या दोगे आप, जो आपको लगा कि आपके लिए बहुत यूजफुल रही पूरे जर्नी में, उनको भी वो करनी चाहिए इफ दे वांट टू क्लियर द इंटरव्यू. तो कोई एक ऐसी टिप आप देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? ओके सर, सो मेरे हिसाब से सर 2-3 चीजें हैं जो बस बेसिक है सर, उसको बस थोड़ा सा ब्रशअप करने का जरूरत है. वो सबसे पहला है सर कॉन्फिडेंस, कि यू शुड नॉट लुक नर्वस और लाइक पर्सन की जो आई मीन यू शुड नॉट फंबल व्हाइल गिविंग योर आंसर. यू शुड, जितना भी आप जानते हो उतना बोल दो और चुप हो जाओ. यू डोंट ट्राई टू ब्लफ देम कि even if you are not knowing, you are fumbling, you are keeping you are steadily telling your answer. No, अगर नहीं जहां तक जानते हो वहां तक रुक जाओ, कॉन्फिडेंट साउंड करो. एंड सेकंड इज सर, ट्राई टू एक्सप्लेन योर आंसर ड्यूरिंग इंटरव्यू. डोंट जस्ट टेल आई थिंक आई ओनली गॉट सिलेक्टेड बिकॉज मेरे पास और कोई क्रेडेंशियल्स तो है नहीं सर. आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस एट सच, and neither I answered all the questions, neither I think my demo was super great. So I did only one thing. I tried to explain the answers. So please do this. Try to explain the answer. Don't give short answers, one word answer. Don't try to explain too long. 2-3 lines, 4 lines will suffice. And third, sir, I would like to that you should have good communication skills. No, that doesn't mean you should speak super English. No, basic English. But yeah, you should know how to speak. You should not fumble here also. Just don't fumble, and just explain this. If you follow this, your chances will increase manifold.
तो गाइस आई थिंक रोशन ने आपको सारी टिप्स दे दी है विद क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं बायजूस में। आई डोंट थिंक इसके बाद कुछ भी रिक्वायर्ड होगा आपको इससे ज्यादा। अगर आप इसको फॉलो करते हो ना तो आई एम श्योर कि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली बायजूस में हो जाएगा। तो फॉलो ऑल दिस जो रोशन ने बताई आपको, एंड लेटर व्हेन यू गेट सिलेक्टेड प्लीज थैंक रोशन अगेन बाय कमिंग टू दिस वीडियो। कमेंट में लिखना, रोशन का नाम मेंशन करना, एंड प्लीज थैंक हिम बिकॉज ही हैज स्पेयर्ड हिज टाइम टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, उन्होंने अपना टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से टू हेल्प यू गाइस। So that is my just request कि whenever you get selected, please thank Roshan later. That will definitely give him a boost. ठीक है, and Roshan आपके लिए I wish you all the very best for your journey. आप जो भी करो बायजूस में within coming 2-3 years, आप बहुत grow करो. Wherever you go, you have high scope. That is only my best wishes to you. ठीक है? So thank you sir, thank you very much. All the best from my side. And guys आपके लिए keep practicing. Try करते रहो, attempt करते रहो, selection लेते रहो, and give us the thumbs up once selection is done. So आज की वीडियो में इतना ही है guys. I'll see you soon in next video. Till that time, take care of yourself and bye bye for now. Guys, I hope आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो don't forget to like the video, share with your friends and subscribe our channel so that आपके लिए हम फ्यूचर में भी ऐसे इनोवेटिव वीडियोस लाते रहे so that you can get help from all these videos. I'll see you soon in next video. Till that time, take care of yourself. Bye bye.